Good morning, children. Welcome back to your online business study class. As in the previous video, we are discussing about the scope of international business, where I have explained you that the first way of entering into international business is merchandise export and import. Right? We have already discussed it, but because of certain technical issues, that video was off. Now we will be discussing from the second point, and that will be the service export and imports. Now, service export and import is the second manner of conducting our international business or engaging into an international business. This basically say that when we say about merchandising means a product जो कि टेंजिबल होता है. एक प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज हो सकते हो, राइट. और इन केस सर्विस और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज इंटेंजिबल थिंग्स, राइट. यानी एक सर्विस को आप इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट करके भी क्या कर सकते हो, किसी इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज हो सकते हो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस, इट बेसिकली से सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन्वॉल्व ट्रेड इन इनटेंजिबल थिंग, मीन्स जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंजिंग कर रहे हैं गुड्स को, नहीं किसको, सर्विसेज को. So that is also one of the way of engaging into international business. Now intangible we say services because it is also called as invisible trade. Invisible इसलिए because when we exchange services from one person to another person, we are only able to feel it, we are not able to touch, and we are not able to see it. And the reason behind is that because the services contain the feature of intangibility. Like there are a lot of variety of services which are traded internationally. These are like your tourism services, your travel, your boarding, lodging, hotel, restaurant, एंटरटेनमेंट, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि सिर्फ एक कंट्रीज के जोग्राफिकल लोकेशन की बाउंड्री के अंदर ही तक लिमिटेड नहीं होती हैं. इनको हम इंटरनेशनली भी प्रोवाइड करा सकते हैं. सो वेन एवर वी आर एंगेज इन टू इंटरनेशनल बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज internationally, that we will be calling as a service export and import. Now, the next way of engaging into international business by the help of licensing and franchising. Now, it's very easy. You need to understand that when we are talking about licensing हम कब करते हैं? When we are using a product और when we are using a name of other company for our product. So licensing basically किससे related होता है? प्रोडक्ट से related होता है, टेंजिबल गुड्स से related होता है जिनको आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं. जबकि फ्रेंचाइजिंग किससे रिलेटेड होता है? फ्रेंचाइजिंग बेसिकली प्रोवाइड होती है आपकी सर्विसेज के लिए, जैसे कॉपीराइट सर्विसेज होगी, आपके पेटेंट हो गए, ये सब क्या है हमारी, ये फ्रेंचाइजीज होती है. लेट्स सी लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग क्या है. Permitting another party in a foreign country to produce and sell good under your trademark, patent or copyright in lieu of some fees is another way of entering into international business. This basically say that licensing में basically हो क्या रहा है, जब हम एक पार्टी को जो कि फॉरेन कंट्री में है उसको अलाउड कर रहे हैं कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करे, उन गुड्स को सोल्ड करे आपके नाम के अंदर, दैट इज़ द ट्रेडमार्क, राइट. ट्रेडमार्क यानी वो मार्क, वो सिंबल जो कि आपने रजिस्टर कराया है, राइट. पेटेंट, कॉपीराइट विथ सम फीस, और ये सब जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारे ब्रांड नेम को यूज़ करे, हमारे ट्रेडमार्क को यूज़ करे, हमारे पेटेंट को यूज़ करे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सेल करने के लिए. सो इन दैट केस इन कंसिडरेशन वी आर ऑल्सो टेकिंग मनी विच इज़ कॉल्ड एज अ फीस, जिसको हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे रॉयल्टी, राइट. So, like we have example of licensing system for Pepsi and Coca-Cola. Now, these are produced in all over the world. These are sold also in the all over the world. But the brand and the trademark is discovered by one company. एक कंपनी ने डिस्कवर किया है जिसको बाकी कंपनी ने एज अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी लिया है. Now next is franchising. Now when we say franchising, it is similar to licensing. Licensing के जैसा ही होता है ये भी, but it is a term used in connection with the provision of services, right. Means it is same, बट ये कनेक्शन ऑफ किससे यूज़ हो रहा है, ये सर्विसेज से रिलेटेड हो रहा है. यानी जब एक कंट्री किसी दूसरी फॉरेन कंट्री को किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अपना नाम यूज़ करना अलाउड करती है, कि कोई कंट्री अपने दूसरी फॉरेन कंट्री के नाम पे या किसी दूसरी कंट्री के सर्विसेज को अपने नाम पे सोल्ड करे या अपने नाम पे प्रोवाइड करे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रेंचाइजिंग. नाउ दिस इज़ द अनदर वे ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस. सर्विसिंग की अगर हम बात करें, कौन कौन से सर्विसेज आपकी फ्रेंचाइजिंग में चलती यूज़ होती हैं, मैकडोनल्ड है, राइट. सो दिस इज़ जस्ट अ ट्रेडमार्क, ये एक सर्विस है जिसका ब्रांड नाम नेम
दूसरी कंपनीज को यूज़ करने के लिए परमिशन दिया गया है। आपके इंस्टेंस ऑपरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, ये अपने क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड कराते हैं दूसरे सर्विस सेंटर्स को। नेक्स्ट है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द अनदर वे ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर अ फाइनेंशियल रिटर्न। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एक कंट्री क्या होती है, या कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉरेन कंट्री में एक फंड को, अपने फंड को इन्वेस्ट करती है अब्रॉड में, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, कुछ फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सचेंज पे और कुछ फाइनेंशियल रिटर्न की कंसिडरेशन पे। वो रिटर्न क्या हो सकता है, दैट रिटर्न कैन बी अ प्रॉफिट, दैट रिटर्न कैन बी अ पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑल्सो, राइट। सो लेट्स सी, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अनदर इज योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, विच टेक प्लेस व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज सच एज प्लांट एंड मशीनरी इन अ फॉरेन कंट्रीज with a view to undertaking production and marketing of goods and services in those country. Direct investment provide the investor a controlling interest in a foreign company known as direct investment. It can be in a form of joint venture on PPP. Now this is basically say like direct investment, जैसे उसका नाम बता रहा है, यहाँ पे एक कंपनी क्या करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ना इंगेज होकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है, राइट। कैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है, वो किसी फर्म की जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दे, या फिर उसके प्लांट में इन्वेस्ट कर दे, फिक्स एसेट जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि हमें एक लॉन्ग टाइम में रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, राइट। प्लांट में इन्वेस्ट कर दे, और दे कैन इन्वेस्ट इनटू अ मशीन इनटू अ फॉरेन कंट्रीज, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, टू अंडरटेक द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज कंट्रीज। यानी उन कंट्रीज में वो इन्वेस्ट कर रही है किसी एक फर्म के प्रोडक्शंस के लिए, किसमें, उनके फिक्स एसेट्स में, ताकि उनके फिक्स एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री में अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सके और सोल्ड कर सके। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका बेसिकली बोलता है दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी मेक इन टू अनदर कंपनी by the way of acquiring shares or providing loan to the latter and earn income by way of dividend or interest on loan. Now why it is called as portfolio investment? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपनी किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, उसके फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ना करके कैसे कर रही है, यहाँ पे कंपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए दो मैनर में इन्वेस्टमेंट करी। या तो कंपनी की और दूसरी कंपनी के क्या करती है, शेयर्स को एक्वायर कर लेती, परचेज कर लेती, खरीद लेती है, या फिर लोन प्रोवाइड करती है दूसरी फॉरेन कंपनी को। सो इफ दे आर परचेजिंग और एक्वायरिंग द शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी, दे आर गोइंग टू गेट व्हाट, इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू गेट डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, एक डिविडेंड तो मिलता है ना प्रॉफिट के अमाउंट पे। और इन केस दे हैव एक्वायर नॉट एक्वायर द शेयर, अगर वो शेयर को एक्वायर नहीं कर रही है और फर्म को लोन प्रोवाइड करा रही है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो व्हाट दे आर गोइंग टू गेट, दे आर गोइंग टू गेट अ इंटरेस्ट अमाउंट। सो बोथ द मैनर व्हाट अ कंपनी इज डूइंग हियर इन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में दोनों अमाउंट में कंपनी अर्न कर रही है। अगर शेयर होल्डर एक्वायर करके, शेयर्स को एक्वायर करके करती है तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर इन केस किसी फॉरेन फर्म को लोन प्रोवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर रही है तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट or a part of scope of international business. Now children, in the next video we will be talking about the benefit of international business.